thank JCI team led by Kardar Bagra Sahab and my Bhanja Yundu Paduji that they have invited me to this program, and I have to again appreciate them, Father, that whatever I have heard just now, it is very good that this type of training is being imparted today. And for that, as a resource person, whatever you may say, Sri Vijay Kumar Agarwal ji, as my Bhanja was saying, chartered account of repute in entire Northeast is here. So it is not every day that you get this opportunity to learn something on taxes. So kudos to JCI team led by these two young guns. Now I can see my Beti Jumi, Central Officer Bagra, JPM Bagra Sahab, and then Mara Iken Mam Sahab, and everyone, all the guests who are here. See, tax is such a subject, tax, loans, and these subjects are so, I mean, when we talk about these subjects, we don't want to get much into it because it is very taxing, and even when we used to study during our school, subjects like commerce, subjects like economics, accountancy, these subjects were something we used to run away from. Because it was so complicated for us to learn the mathematics of it. There was what we call calculus and all these things were there. So I used to run when those are doing bhagta. But the thing is, at the end of the day, you have to use it in your daily life afterwards. So a little bit of knowledge is must. Of course, you cannot be master in that, but little bit of knowledge is necessary. So therefore, GST, loans, all these things are something which everyone should have little bit of knowledge about. So I am sure that today, by imparting this session, every one of you who are present here will go back a little bit more, will have a little bit more knowledge about loans and taxes and all. And Agarwal Sahab ko, I would like to request that, I guess you must be hired by governments in formulating policies. So I would request you that when you give your advice to governmental agencies, tell them to make GST loans simpler, easier for people to understand. So that is one aspect which I would like to request you, whenever you get an opportunity, you ask the governmental agency to make it simpler, so that even common man will understand. That is one aspect from my side. And once again, best wishes from my side. Please have a very nice, good session. And as I said earlier, make everyone, enrich everyone, although albeit maybe very less, but at least some basics of securing loans and GST, whatever it is understood by everyone, ever so slightly also. So with these words, once again, I wish everyone the best of luck for today's program. Thank you very much. Cater those requirement. अब इतने बड़े उद्योगपति अगर असम में, नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, तो उनको कदम से कदम मिलाने के लिए हमको सिमिलर एंटरप्रेन्योर लोकल लेवल में भी चाहिए टू सप्लाई ऑल दोस रॉ मटेरियल्स टू देम. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लेकर आया है, उन्नति स्कीम. नीचे, तो व्हाट इज द स्कीम एलिजिबिलिटी? स्कीम इज नीचे 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 करिए, हाँ, और नीचे करिए ना. Scheme is applicable till 31st March 2026. Very important. इस स्कीम को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31st मार्च 2026, जहां पर आपका एलिजिबिलिटी आता है नीचे डाउन
जहां पर आपको दो जोन में बांटा है, जोन ए एंड जोन बी। आलो जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो जोन बी में आता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगा। बट हु आर एलिजिबल, लेट अस स्टडी इन दिस स्कीम। डाउन, यस, सी द एलिजिबिलिटी। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर दिस स्कीम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज 1 crore in plant and machinery, service sector is 50 lakh rupees एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज 50 लाख रुपीस। मतलब आप 50 लाख के नीचे अगर काम चालू करते हैं तो ये स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम इज 50 लाख फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज, 1 crore फॉर ट्रेडिंग एंड 1 crore फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री में फॉल होने से ही आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट? यस, 30% of eligible investment with maximum of 5 crore and where GST is not applicable maximum of 10 crore। मतलब आपका जितना इन्वेस्टमेंट होगा, एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 50 लाख रुपीस। आप सपोज 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो 30% मीन्स 1.5 करोड़ रुपया आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग। If you are doing investment of 2 CR, then 60 lakh rupees return you will get in this scheme. Maximum limit is 5 crore और जहां पर GST applicable नहीं है उसका maximum investment is 10 crore rupees। For example, अगर 50 करोड़ का काम चालू कर रहे हैं, मिस्टर पाडू जी अगर 50 करोड़ का यहाँ पर सेटअप करेंगे तो 30% of 50 करोड़ is how much? 15 करोड़। क्या इनको 15 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट इज 5 करोड़ और जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है 10 करोड़। ही वोंट बी गेटिंग 15 करोड़ रुपीज रिटर्न बैक। देयर इज अ मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ऑफ सब्सिडी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। सेकेंड सब्सिडी इसमें क्या है? इंटरेस्ट सब्सिडी। पहला तो है आपने जो पैसा लगाया है वो आपको पैसा सब्सिडी मिलेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा। सेकेंड हो गया आप जो बैंक से लोन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ लोन एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन उसमें 3% आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी भी मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अमाउंट। 3% इंटरेस्ट मतलब अगर 10 CR का लोन लिया है और उसमें आपका 20 लाख रुपया अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो शायद 6 लाख रुपया एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट का भी सब्सिडी मिलेगा। दिस इज अगेन अनदर सब्सिडी इन दिस उन्नति स्कीम। इट इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट। आपका अरुणाचल के लिए पूरा एप्लीकेबल है और अरुणाचल के लिए ज्यादा सब्सिडी है इसमें, उन्नति स्कीम में। नेक्स्ट, बस अभी देखिए कौन सा इंडस्ट्री इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंडस्ट्री इसमें कवर हो जाएगा, फिर भी मैं एक एक करके पढ़ता हूं। होटल एंड हॉस्पिटलिटी। होटल एंड हॉस्पिटलिटी अगर कोई सेटअप कर रहा है यहाँ पर तो उनको सब्सिडी मिलेगा। टूरिज्म, होम स्टे, एडवेंचर, हेल्थ, वो भी स्कीम में मिलेगा। जैसे कल कोई एक मैंने प्रोजेक्ट देखा था टूरिज्म का, यहाँ पर है, वो भी कैटेगरी इसमें फॉल होता है। आपको ऑनलाइन उन्नति वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना है। 31 मार्च 2026 इज द लास्ट डेट। Till 31st March 2027 गवर्नमेंट will verify those project. If they find it suitable, they will be passing, आपको वो पास कर देंगे और आपको स्कीम का सारा बेनिफिट मिल जाएगा। बट एवरीबडी शुड रजिस्टर। रजिस्टर करने में कोई खर्चा नहीं है। 10, 20, 50 हजार रुपया खर्चा आपका खाली प्रोफेशनल फीस ही लगेगा, लेकिन आप उसको रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप स्कीम में फॉल हो गए, जिंदगी भर आपको सब्सिडी मिलेगा पूरा। नेक्स्ट इज टूरिज्म में भी देखिए, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, माइस, रोपवे, एंटरटेनमेंट पार्क, राइड, एडुकेशन, वोकेशनल, डिजिटल, ई लर्निंग, एवरीबडी, एवरीथिंग। हेरिटेज प्रॉपर्टी, रिस्टोरेशन सर्विसेज। कोई एंशिएंट हेरिटेज यहाँ पर आलो में अगर प्रॉपर्टी है उसका रिस्टोरेशन, रिनोवेशन चलेगा, वो भी कवर्ड है। बायोटेक पार्क, फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कोई यहाँ पर एडवाइजरी सर्विसेज है? यस सर। मेरा एक प्रोजेक्ट अभी आपका माइक दे दीजिए, इनको और एक माइक है ना। हाँ बोलिए सर। मेरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एमओयू साइन किया हुआ। तो उनका जो एनुअल आपका इन्वॉल्वमेंट जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, इट्स गोस अराउंड 1 CR। नाउ द मेथड इन व्हिच आई हैव साइन द एग्रीमेंट इज
A, वैसा है कि first I have to make investment, then I have to submit all those expenditure in a bill format, then that money will be reimbursed to me. Now my question here is, वो तो एक government setup है, लेकिन क्या हम शुरुआत में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उस चीज को आपका उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इन वे पॉसिबल उसको हम एक आप प्रोजेक्ट का रूप में डाल दें, क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिइंबर्स मनी, तो ये एलिजिबिलिटी इसमें आता है। अभी मैं इनका क्वेश्चन था, मैं रिपीट करता हूं कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज कुछ काम कर रहे हैं और उसमें खर्चा का डिटेल सबमिट करते हैं एंड ही इज गेटिंग द रिएम्बर्समेंट। सो वेदर ही इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी इन दिस स्कीम, बताइए रीजन क्या है, बताइए रीजन बताइए। लेट अस हैव इंटरैक्टिव सेशन, मैं तो डिस्कस, बताइए आप बताइए। सर का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, राइट? हाँ, वो अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, आप इसको एक ये मान लीजिए, एक हॉस्टल है, ये हॉस्टल है तो इसमें तो हॉस्टल है तो इसमें आपका ईमेल सिस्टम है, तो ये आपका मान लीजिए एक्सपेंडिचर रेगुलर है और ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉस्टिंग भी है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी हमको इस तरीके से किया गया है कि 6 मंथ में हमको ये मेरा आई अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या उनको मिलेगा सब्सिडी इस स्कीम में? नहीं। व्हाट इज द रीजन, बताइए, लेट अस शेयर, कुछ भी रीजन बताइए। गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट का काम कर रहा है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और बताइए रीजन। देखिए, एक हाथ से एक ही लड्डू खा पाएंगे, इस प्रभाव का मीनिंग समझ में आता है? एक हाथ से एक ही लड्डू खा पाएंगे, 2 लड्डू नहीं खा पाएंगे। मतलब वहां पर आपको रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, तो दैट मीन्स वेदर यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट, व्हेन वन वे यू आर गेटिंग द रिएम्बर्समेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आपका पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है क्या? तो देन 100% रिएम्बर्समेंट अगर मिल रहा है तो सब्सिडी का बात ही क्या है? हम ये सब्सिडी का वो बात नहीं कर रहे, सब्सिडी की नहीं है, हमने ये है कि जैसे कि सर्टेन अमाउंट जो 6 मंथ के लिए जो एक्सपेंडिचर रन करने के लिए ना आपका जैसे कि बिलोइंग कॉस्टिंग के रन करने के लिए लोन, बिलोइंग कॉस्टिंग के लिए लोन इसको इमिट करने के लिए कोई आपका इसमें प्रोविजन है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें आपका सिंपल है, आपको नया बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका खुद का होना पड़ेगा। खुद का बिजनेस नया या एग्जिस्टिंग बिजनेस है और वो सब कैटेगरी में फॉल होने से आपको मिलेगा। आपका वो रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए आपको बैंक से लोन चाहिए, वो आपको मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क ऑर्डर। आपका वर्क ऑर्डर के हिसाब से आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा, बट इसमें आपका फॉल नहीं होगा वो, because already you are getting all the reimbursement also, and that is not covered under, because it is not an MSME business। सिंपल बात समझने की कोशिश करिएगा कि खुद का व्यापार जो चालू कर रहे हैं, खुद का इंडस्ट्री, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद का प्रोडक्शन, खुद का ट्रेडिंग, खुद का सर्विस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी मिनिमम लिमिट अगर है तो ही आपको मिल पाएगा। अभी आपका चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एप्लीकेबल है, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, IT सेक्टर, टेक ओरिएंटेड स्टार्टअप, एजुकेशन, प्राइमरी, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, उन्नति स्कीम में एवरी सेगमेंट ऑफ बिजनेस इज कवर्ड। अब नेगेटिव इंडस्ट्री लिस्ट है इसमें जो कवर नहीं होता है, ये आप ध्यान से सुनिए कि क्या क्या इसमें कवर नहीं होता है। द फर्स्ट इज टोबैको एंड सब्स्टिट्यूट पान मसाला। एनी काइंड ऑफ सेटअप बीइंग डन फॉर टोबैको एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ठीक है, तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ गया। आप सिगरेट का काम चालू करके गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगा, नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट हो गया एनी काइंड ऑफ एक्साइज टैरिफ फॉर पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइनरी। कुछ पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइनरी को इन लोग एग्जेम्प्ट किया है बिकॉज ऑलरेडी इट इज मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। ऑलरेडी वहां पर बहुत सारा सब्सिडीज था पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइनरीज में। थर्ड इज प्लास्टिक कैरी बैग्स एज पर द प्लास्टिक नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए वो बेम्बू और उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, कागज को प्रमोट करते हैं, तो वो सेगमेंट को डिस्करेज करती है। एनी काइंड ऑफ यूनिट विच इज डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरमेंट। कोई भी ऐसा यूनिट जिससे स्मोक वोक निकलता है, एनवायरमेंट को खराब करता है, वैसा यूनिट को डिस्करेज करती है। और आपका आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत बड़ा वर्ड आ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इसमें स्कीम में अलाउ नहीं कर रहा है। कैन एनीबडी से व्हाई सीमेंट इंडस्ट्री इज एक्सक्लूडेड? पोल्यूशन,
पोल्यूशन तो बहुत इंडस्ट्री करता है। माइनिंग, ठीक है। देखिए सीमेंट इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी सब सब्सिडी ले चुका है। पहले नॉर्थ ईस्ट में एक नया स्कीम, पुराना स्कीम था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, NIDS बोलकर स्कीम था, 2004 से चालू हुआ था। उसमें सब सीमेंट इंडस्ट्री को सब्सिडी मिल गया था। तो अब उनको फिर से सब्सिडी देने के लिए यहाँ प्रमोट नहीं करेंगे। ऑलरेडी लुम्सलुम में, मेघालय में आप सीमेंट फैक्ट्रीज पूरा लाइन से है, जोवाई से, लट्रिमबाई से आगे जाकर लुम्सलुम बोल के जगह है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीमेंट का बहुत है बिकॉज ऑफ हाई नेचुरल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का पहाड़ बहुत है यहाँ पर, तुरा में है, गारो हिल्स में है, वहाँ पर है। तो वो लाइमस्टोन और कोयला का यहाँ उत्पादन होने के वजह से यहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बहुत है। तो दे आर नॉट प्रमोटिंग मोर सीमेंट इंडस्ट्री इन दिस स्कीम। नेक्स्ट, ठीक है, हो जाएगा, क्लोज कर दीजिए इसको। सो बेसिकली आपका 50 लाख 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपको 31 मार्च 2026 के पहले ऑनलाइन उन्नति वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा एंड आपको 35% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा एंड 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा एंड GST बेनिफिट्स भी मिलेगा। बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बिकॉज दिस इज अ न्यू स्कीम। अभी तक ये स्कीम स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तक ओनली पीपल आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कीम। सो इफ यू ऑल आर एलिजिबल, आप थोड़ा स्टडी करिए, कुछ हेल्प चाहिए मैं फ्री होकर आपको हेल्प कर दूंगा, बट एटलीस्ट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। अप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला तो बहुत बेनिफिट, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट अप्लाई बिकॉज दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस है कि ये 2 स्टेट्स में आदमी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करके काम चालू करें। तो स्पेसिफिकली ये सब 2 स्टेट के लिए 2000 करोड़ का कम से कम फंड दिया गया है फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस 2 स्टेट्स। एंड आई एश्योर यू 100%, आप लोग में से जितने जन बैठे हुए हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे 80% विल गेट दिस स्कीम ऑल्सो। 80% को ये स्कीम मिल जाएगा अगर आप लोग जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर अगर इसमें क्वालिफाई। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ 80% आदमी लोग को मिल जाएगा। मतलब अगर 10 आदमी भी यहाँ अप्लाई करेंगे तो 8 आदमी को मिल जाएगा बिकॉज लिमिटेड आदमी आप लोग यहाँ पर बिजनेस करने वाले आदमी हैं यहाँ पर, तो इसीलिए आपको ये स्कीम आपको मिलने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और जोन बी में आप लोग फॉल करते हो तो सब्सिडी का रेट 50% हो जाता है। मैंने 30-35% को बोला ना, वो रेट आपका और बढ़ जाता है सब्सिडी का बिकॉज यू आर फॉलिंग इन जोन बी वेर गवर्नमेंट वांट्स कि मोर डेवलपमेंट शुड कम इन दीज स्टेट्स रादर देन डेवलपमेंट कमिंग टू गुवाहाटी और बरपेटा और रंगिया जो जोन ए में फॉल करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट उन्नति स्कीम। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अब थोड़ा हम लोग GST को स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट्स में GST डिस्कस करते हुए फिर 1 आवर विल टेक द क्वेश्चन आंसर्स। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। उन्नति स्कीम के सर तो लोन मिल रहा है, उसमें मतलब ऐसा पता चल रहा है कि उन्नति में पहले जैसे इंडस्ट्री होटल नहीं मिलता, तो उसमें आपका पहले आपको ही कुछ सब कुछ खर्चा आपको ही करना होता है। Yes. वो बाद में आपको यस करेक्ट। देखिए उन्नति स्कीम में क्या होता है कि, और एक माइक था ना, एक माइक यहीं पर दे दीजिए, बेटर दे दीजिए, ये यहीं पर रखिए, आप लोगों को कोई जरूरत होगा। देखिए उन्नति स्कीम इज नॉट अ बैंक लोन, चीज को समझिए। मैंने जो फर्स्ट हाफ में स्कीम को बोला था डेट वाज अ बैंक फंडिंग। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा का जरूरत है तो बैंक आपको पैसा दे रहा है, वहां पर आप अपना पॉकेट से पैसा नहीं लगा रहा है। बट ये स्कीम हो गया सब्सिडी। सब्सिडी में क्या हो रहा है कि पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा और फिर बैंक आपको, बैंक बोलता है गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर बैंक का रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट का सब्सिडी है। मतलब आप 2 करोड़ रुपया पैसा लगाइए, फिर 1 करोड़ रुपया आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, दैट इज सब्सिडी। इज इट क्लियर? बट इन द फर्स्ट सेगमेंट दैट वाज अ बैंक लोन, टर्म लोन। आपको पैसा लगाने का जरूरत नहीं है, पैसा होगा तो बैंक से मांगेंगे क्यों, है ना। इफ आई एम हैविंग द फंड, व्हाई शुड आई गो टू द बैंक एंड टेक द फंड? सो बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द फंड, तो बैंक वाला टर्म लोन आपको फाइनेंस करते हैं मशीनरी करने के लिए। तो दैट वाज बैंक लोन स्कीम। दिस इज उन्नति स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज गिविंग द सब्सिडी बैक। तो आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन एक बार का आपको पैसा लगाना पड़ेगा और फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और फिर आपको पैसा रिफंड होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग यू विल कम टू नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट।
ऐसा नहीं होगा कि अब सपोज 2 करोड़ का छोड़िए, कोई 50 करोड़ का लगा दिया और उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो तो रास्ते में आ जाएगा, है ना। तो आपका स्कीम एलिजिबल है या नहीं, आपका स्कीम एलिजिबल है सर थोड़ा सा, आपका स्कीम एलिजिबल है या नहीं, दैट यू विल कम टू नो बाय 31 मार्च 2027. बिफोर 31 March 2026 all you have to register in the Unnati scheme. Till 31 March 2027 all the verification will be done in the bank. अब अनऑफिशियल ऑफिशियल आप समझ जाइए, जब वेरिफिकेशन होगा तो अनऑफिशियल जान पहचान भी लगाना पड़ेगा, ऑफिशियल जान पहचान भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम का बात है, ठीक है। तो लोकल में आपका पूरा जान पहचान लगाइए, स्कीम अप्रूव करिए, दैट्स इट। पूरा जिंदगी भर माने बल्ले बल्ले फिर सब टाइप का सब्सिडी मिलेगा। एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए पैसा दिया जा रहा है, बिकॉज अंबानी टाटा अभी इतना इन्वेस्ट कर दिया, उनके टक्कर में अगर हम बिजनेस नहीं चालू करेंगे तो वेदर दे विल सर्वाइव। दे नीड द मैन पावर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ओनली, दे नीड द मैन पावर फ्रॉम मिजोरम, अरुणाचल, इम्फाल, गुवाहाटी एक्सेट्रा ओनली। वो तो आप अहमदाबाद और गुजरात से नहीं लेके आएंगे ना, लोकल चाहिए उनको। तो लोकल के लिए गवर्नमेंट सिनोनिमस बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट और किया साथ में। ये वैसा ही बात हो गया कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक बड़ा फैक्ट्री चलाएंगे, तो वर्कर के लिए एक रूम भी तो बनाना पड़ेगा सेपरेट, नहीं तो वर्कर कहाँ से काम करेंगे। तो वैसा ही बात है, टाटा लोग के लिए अभी हम लोग एक सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम भी साथ साथ में छोटा छोटा यूनिट को स्टार्ट करें। सो सर ये उन्नति का तो हो गया आप खुद के लिए इन्वेस्ट करना, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, तो बैंक से कुछ हो पाएगा? वो इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से आप पैसा ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं, लेकर आप डालकर फिर सब्सिडी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लमजी सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि आप डबल बेनिफिट ले रहे हैं। बैंक से भी पैसा उठा रहे हैं, बैंक से पैसा उठा के उन्नति में डाल रहे हैं, और फिर उन्नति से पैसा भी रिफंड लेंगे आप, समझ रहे हैं आप। तो ये टफ सिचुएशन हो जाता है प्रैक्टिकली, बट यू ऑफिशियली यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, ये भी एक जरिया कर सकते हैं। ऑफिशियली यू कैन डू इट, यू कैन टेक अ टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, देन अप्लाई फॉर द उन्नति स्कीम, एंड उन्नति स्कीम में पैसा लेकर फिर बैंक लोन भी मार दीजिए आप। तो ऑफिशियली यू कैन डू, बट इट विल बी अ टफ प्रोपोजिशन फॉर गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव दोज प्रोजेक्ट ग्रीन सिग्नल जो पहले खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे हैं, क्योंकि हार्डशिप उनको ज्यादा है ना, जो पॉकेट से लगा रहे हैं। यस यस। सबसे पहले आलो रेस्टोरेंट में स्वागत करते हैं सर। तो आज जैसे आलो एलाइट ने MSME एंड GST का 1 डे वर्कशॉप रखे गए, स्पेशली जो हम लोग का बिजनेस मैन ओनर लोग के लिए ये रखा गया है, तो आप इसको पर क्या कहना चाहिए? मैं इस इनिशिएटिव को बहुत सराहना चाहूँगा। JCI द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसके तहत हमारे यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको GST के बारे में, लोन्स कैसे सिक्योर करना है उसके विषय में एक ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जा रहा है। और इसके लिए अग्रवाल साहब बहुत ही रिप्यूटेड चार्टर अकाउंटेंट हमारे एंटायर नॉर्थ ईस्ट के वो पधारे हुए हैं और वो सिखाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जब हम GST और टैक्सेस वगैरह का बात करते हैं तो थोड़ा हम लोग इसमें एक जानकारी जो है थोड़ा कम रहता है। वो स्कूल के ज़माने से ही ऐसा था कि जब हम कॉमर्स, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जब बोलता है तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि वो टफ होता था। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि आज ये इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ही ज़रूरी होता है। GST के बारे में नॉलेज और आपका टैक्सेस के बारे में नॉलेज, लोन्स के बारे में नॉलेज, तो ये बहुत ही सराहनीय है। ये दोनों और इनका JCI टीम मिलकर ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे संयोजित किया है। मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा मेरी तरफ से। सर, आज का जो आपका ट्रेनिंग सेशन रहा है यहाँ पे, आप तो पूरा पैन इंडिया में आपका प्रोजेक्ट चलता है, तो इतना हेक्टिक स्केड्यूल को आप वो मेंटेन करते हुए आप यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये आपको कैसा, आपको क्या लगता है कि ये आज जो अटेंडेंस था यहाँ का, जो ट्रेनिंग्स लोग था, तो वो लोग इससे बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, और आपका वो लोग का रिएक्शन आपको कैसा लगा सर? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करूंगा JCI आलो एलाइट के प्रेसिडेंट मिस्टर करदार बागड़ा जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम पूरे आलो में, ये फर्स्ट टाइम एक फुल डे बिजनेस समिट हुआ है
जहाँ पर इन्होंने इनकी टीम और इन्होंने पूरा मेहनत करके इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड आई मस्ट से इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस विद 80 to 100 पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं और पूरा डेडिकेटली दे वर लिसनिंग। एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आपने बुलाया है। हाँ, जैसे आपने बताया हैप्टिक शेड्यूल रहती है, लेकिन जब पार्टिसिपेशन, एक्टिवनेस और जब सेमिनार इस तरीके से इस दायरे पे होती है तो वो हैप्टिकनेस भी निकल जाती है एंड वी फील दैट आवर पर्पस इज़ फुलफिल्ड। मैं अगर एक लाइन में बोलूँ आज के सेमिनार के बारे में तो शायद आज 5 से 6 घंटे में 2 करोड़ से 3 करोड़ का बेनिफिट उस 70-80 मेंबर्स को हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि मॉनेटरी टर्म्स में पीपल को, आज मेंबर्स को पता चला कि कैसे वो जीएसटी और इनकम टैक्स के नॉर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे अब जीएसटी के इनपुट, जीएसटी, टीडीएस और कैसे वो एमएसएमई लोन्स, जितने सारी स्कीम्स है, कैसे वो बढ़ावा दे सकते हैं बिज़नेस को, कैसे नया बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, कैसे वो उन्नति स्कीम जो गवर्नमेंट की आई हुई है जिसको 31 मार्च 2026 तक अवेल कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों को और जीएसटी इनपुट्स को यूज़ करते हुए हम देखे हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में पीपल हैव अर्नड फ्रॉम दिस सेमिनार। एंड आई एम श्योर कि मैं चाहूँगा कि आलो में, ईटानगर, अरुणाचल में इस तरीके से सेमिनार कराते रहे। जब भी मेरी सेवा की ज़रूरत होगी मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके यहाँ पर आने के लिए एंड इस चीज़ को सक्षम कराने के लिए। माध्यम से आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से अपील यही करूँगा, आलो डिस्ट्रिक्ट के आज बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ आए थे, एमएलए साहब आए थे, ऑनरेबल एमएलए, फिर जिला परिषद, सर्कल ऑफिसर, बहुत सारे डिग्नेटरीज आज आए थे और मैंने उनको अपील भी किया था। और मैं मीडिया के थ्रू अपील ये करना चाहूँगा कि आप लोग ये यंगस्टर्स को सपोर्ट करिए, जैसे आलो इलाइट, करदार जी और जितने मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करिए। दे विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर यू। आप मेक श्योर करिए कि अवेयरनेस टाइप के सेमिनार्स होते रहिए और उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इस सेमिनार्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। बिकॉज जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तब तक आप कंप्लायंस को भरपूर नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी अगर आपकी करेंगे अच्छे से तो कंप्लायंस डेफिनेटली विल हैपन। एंड आई विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि आप इनिशिएटिव लीजिए और मैं चाहूँगा कि जैसे एलाइट से आप लोग सब गवर्नमेंट के साथ में जाइए, बैठिए और उनको प्रोजेक्ट्स दिखाइए कि हम इस तरीके से वैल्यू एजुकेशन सेमिनार कराते हैं सो डैट एंटायर आलो रीजन कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेशंस। So this will be my humble appeal to all the government official, honorable MLA सर जो आज आए थे कि आप इस तरीके के सेमिनार्स को सपोर्ट करिए सो डैट हम मल्टीपल सेमिनार्स इस टाइप का कंडक्ट करा सकें। थैंक यू।